वैसे तो मेरा इंटरनेट लग नहीं ओके ठीक है सो वी आर लाइव एंड हाँ हाँ, नहीं, यू नो नीचे जितने लोग काम कर रहे हैं मैंने सबका वाईफाई बंद कर दिया। मेरा ये अच्छा सब अच्छा बंद किया कर दिया। बिकॉज यू डिड जस्ट हैंग फॉर अ मिनट अगेन या the video is stuck and I can't hear you. Um, Viewers, we are extremely sorry for this inconvenience, which, I think we're just gonna have to reconnect. Sorry, everyone. You all know, okay, these days we have to use the internet a lot. Everything is online, so there are going to be some technical issues. I'm just gonna contact Shiroz again and ask him if he can reconnect. Excuse me. Okay, I'm getting this. Assalamualaikum, everyone. If you could just please give me a minute so that I can reconnect with our guest. And in the meanwhile, you could please mention in the comments if you can see me and hear me clearly. Thank you so much. Yep. Yeah, I have you again. Okay. It's Okay. weird. Yes. Like right at the moment, we started 5 minutes earlier to check everything, but right at live. So we do have some ऐसा viewers. हो नहीं सकता कि मौके पे गलती ना हो, मतलब ऐसा हो नहीं सकता, राइट? ऐसा हो नहीं सकता exactly. So we do have viewers. While I haven't received the confirmation, but I think I can just check for myself. I always say that, and I don't do that. So I should, like actually start doing it. I think they can see and hear us clearly. If someone could please mention in the comments, please. Thank you. Yeah, we're ready to go. Okay. Assalamualaikum everyone. This is Jada Zainab from Creative Cleaner House, and today joining me is Sheroz from Solution. He is the founder and CEO of Solution, and we will learn what Solution is exactly. But let me tell you a bit about him. He told me, I think three words that describe him are that four words. He's an entrepreneur, he's a writer, poet, and he's an amazing father. We'll talk about that as well. So he started his professional career at the age of 14, mashallah, as a junior assistant and served ED Saab as his PA. Thank He you. has served in different profitable and non-profitable organizations. And as he told me that the motivation for creating solution came in 2017. And before I go any further, I want you all hear this from him. Shiroz, Assalamu alaikum. Thank you so much for joining us today. Walaikum assalam, Rida. Thank you so much for inviting me here. Thank you so much. Thank you. So please, let's just start. Tell us a little bit more about yourself, and then we'll talk about solution. ओके सो बस अपने बारे में इतना सा कहूँगा कि इस स्पेशल फील्ड के अंदर पूरे मुल्क में जितने भी लोग काम कर रहे हैं मैं उनकी टीम का एक हिस्सा हूँ और एक छोटा सा खादिम हूँ कि जो कोशिश कर रहा है कि इस फील्ड के अंदर वो तमाम काम कर सके जो अब तक नहीं हुआ, क्योंकि हर चीज़ जो है वो एक नीड बेस्ड होती है। when I found कि यार वाकई इस चीज़ की नीड है तो स्लोली ग्रेजुअली मैंने किस तरह काम करना शुरू किया और आज भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उस गैप को फिल करें जो गैप हमारे इस वक्त कंट्री में मौजूद है कि जो चीज़ें हैं जो हमने बनानी है जो लोग हर बंदा तो इम्पोर्ट नहीं कर सकता, राइट? हर बंदा नोबडी कैन अफोर्ड Amazon एंड Southport.com जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं Exactly. इसका, तो हर बंदा तो उससे नहीं मंगा सकता। सो व्हाई नॉट क्रिएट समथिंग जो हर क्लास अफोर्ड कर सके। So as my background belongs to
very rough routine actually. I was 14 when I joined ED Foundation. तो जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट है, इमरजेंसी सिचुएशन है, वो तमाम सिचुएशंस को डील किया करते थे. और उसके बाद करते करते ED साहब के साथ काम करते करते आई गेस आई स्पेंड फोर किया. और करते करते सीखते सिखाते फिर वहां से निकल के कुछ और ब्रांड्स को ज्वाइन किया. तो वहां से पता चला कि यार ब्रांड होता क्या है, तमाम चीजें क्या होती हैं, उसको सीखते. और इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी. अगर उसको मैं 14 साल पीछे ले जाऊं तो राइट नाउ आई एम 28, तो 14 साल तो हो गए लास्ट में. तो ये बहुत लंबी जर्नी है. तो करते कराते ये हुआ कि आई फाउंड अ प्लेटफॉर्म. ऑल यू गाइस हेard about सबीना खत्री, द किरण फाउंडेशन चेयरपर्सन, राइट? Yeah. तो 2014 में उनके साथ काम करने का मौका मिला था मुझे. और वहां पर हमने जो है वो उनका एक गवर्नमेंट कर रहे थे. और उस रिवैम्पिंग के दौरान जो है वो मैंने उनसे बहुत सारा काम भी सीखा. और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, मेरी फैमिली बैकग्राउंड सारी कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर से है, सो आई हैव अ नॉलेज अबाउट दिस थिंग्स, राइट? तो वहां से वो स्लोली ग्रेजुअली हमने काम को शुरू किया. और वो स्कूल बनने के बाद फिर मैं वहां से मूव हुआ. और ये सफर चलते 2016 और धक्कों से गुजरते फाइनली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ आवर डायरेक्टर, एक्स डायरेक्टर. और उन्होंने कहा कि शहरोज हम एक स्पेशल स्कूल बना. सो आई वाज लाइक स्पेशल स्कूल, ये क्या होता है? आई डिडंट हर्ड अबाउट इट, राइट? मुझे कुछ भी नहीं पता था कि स्पेशल क्या होता है और कैसे होता है सब कुछ. तो मैंने कहा सर अगर सीखने को बहुत कुछ है तो लेट्स डू इट. सीखने को अगर बहुत कुछ है तो लेट्स डू इट. तो उन्होंने बुलाया, मैं उनके पास गया. और मैं और मेरी मिसेस दोनों हम उनके पास गए. और वहां से हम दोनों ने पहले जॉब ज्वाइन की. और हम लोगों ने लर्निंग स्टार्ट की कि बेसिकली व्हाट इज ऑटिज्म, वो है क्या. और फिर उसके बाद वो तमाम चीज़ें जो ये लोग कर रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं देखा था कि स्पेशल इंस्टीट्यूट क्या होता है. तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ये कैसे हो रही हैं, कहाँ से आ रही हैं. तो फिर पता चला कि यार इसको तो कोई नहीं बना रहा, शायद हम ही बनाने. सो थैंक्स टू अल्लाह कि उसने मौका दिया. और उसके बाद एक इतनी कॉपरेट करने वाली टीम मिली. वहाँ की मैनेजमेंट बॉडी वाज सच एन अमेजिंग कोऑपरेटिव. वहाँ के जो इनिशियल थेरेपिस्ट थे, कभी थेरेपिस्ट नहीं सुना तो मैंने कैसा होता, राइट? सो इनिशियल थेरेपिस्ट थे, उनके साथ काम शुरू किया. तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, नो डाउट. उनका बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर. आई एम सॉरी, आई गेस मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो गया. हाँ, सो क्या हुआ कि वहां से एक हमारी देसी जबान में जिसको कहते हैं जुगाड़, राइट? तो वो मुझे पिक्चर देता था कि शहरोज वी नीड दिस. और मैं उस पिक्चर को लेकर भागना दौड़ना शुरू कर देता था. यार ये कैसे हो सकती है, ये क्या हो सकता है. करते कराते ऐसे कह सकते हैं कि एक लंबा अरसा, साल 1.5 साल मैंने ऐसा गुजारा जिसके अंदर सिर्फ सीखा. सो आई लर्न अबाउट ओटी, फिजियो. फिर उसके बाद मैंने पढ़ने का शौक हुआ तो मैंने पढ़ना शुरू किया. और लकीली एक चांस मिला कि मंसूर चौधरी वहीं मौजूद थे और मैं ऑडिटोरियम बना रहा था. तो मैंने कहा कि मुझे भी करवा दें, ये लगे तो कुछ मिल ही रहा है. सो आई डन अप्लाइड बिहेवियर सर्टिफिकेशन इन इट. और उस सर्टिफिकेशन से फायदा क्या हुआ कि मुझे ये सब्जेक्ट को समझने में और हेल्प मिली बेसिकली. तो जब इस सब्जेक्ट को मैंने और समझना शुरू किया ना, तो फिर मैंने रियलाइज किया ये वो तमाम चीजें हैं जो हम अपने बचपन में किसी और तरीके से कर रहे थे. ठीक है, हाँ, किसी और तरीके से कर रहे थे. मतलब हम मिसाल के तौर पे कि अगर ये मॉन्टेसरी आपका मटेरियल है, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके अंदर जो जितनी भी चीजें हैं, और आप फ्लैश कार्ड से जो लोगों को पढ़ा रहे हैं, या आप सेंसरी के अंदर या ओटी के अंदर जो स्विंग्स बना रहे हैं, दिस इज, और ये सारी वो चीजें हैं जो मैं तो एटलीस्ट अपने बचपन में कहीं ना कहीं कर चुका हूँ. हम गलियों में खेल के बड़े हुए, ठीक है, हम एडवेंचर पार्क्स में गए, राइट, और हमने वहीं पर खेलना सीखा, मट्टी में खेल खेल के बड़े हुए. तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसको एक एस्थेटिक सेंस में लाकर आपने बच्चे के हाथ में देनी है. दिस इज व्हाट आई लर्न, राइट, कि ये वो तमाम चीजें जो हमने की हैं, हमें करनी है. लेकिन चूंकि वो बच्चा स्पेशल है, वो इन चीजों को नॉर्मली अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, तो उन चीजों को उसके हिसाब से बना के उसके हाथ में प्रोवाइड करना है उसको. एग्जैक्टली, ठीक है. दैट्स अ फार्मूला एक्चुअली ना. तो जब वो फार्मूला समझ में आया ना, तो फिर काम करना ज्यादा आसान है. मिसाल के तौर पे ऐसा नहीं कि मुझे कोई कह रहा है कि बोल्स्टर स्विंग बना दो. तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया कि यार बोल्स्टर स्विंग क्यों जरूरी है, तो वो जब चीज मेरे पास आई ना कि यार ये इसलिए जरूरी है, फिर मैंने अपना बचपन रिकॉल किया कि तुम बोल्स्टर पे कब बैठे थे.
तो फिर मुझे याद आया कि हम जब अम्यूजमेंट पार्क में जाते थे, ठीक है, तो वहाँ कुछ गोल गोल झूले होते थे जिसके ऊपर वो घोड़े और अजीब से कैरेक्टर लगे हुए होते या थे। या हम उसके ऊपर बैठते थे और ऊपर नीचे होते हुए हम जा रहे होते थे, राइट। सो एग्जैक्टली। मैंने उन तमाम चीजों को रिकॉल करना शुरू किया कि यार ये तो वही चीजें हैं जो हमारे बचपन में हमें इस तरह मिली थी, लेकिन हमने इन बच्चों को किसी और तरह देनी है, ट्रू ट्रू। राइट। ये उस तरह नहीं ले सकते जिस तरह हमने ली थी। तो उन तमाम चीजों को थोड़ा सा मोर प्रीशियस, थोड़ा सा एस्थेटिक और थोड़ा सा इंजरी फ्री करके, ठीक है, और आपने बच्चों को प्रोवाइड किया। सो विल स्टार्ट डूइंग थिंग्स, और उसके अंदर शुरू में बड़े तजुर्बे किए, बड़ा नुकसान किया, और जाहिर है नुकसान तो होता है जब चीज एक बनेगी, फिर दूसरी बनेगी, फिर तीसरी बनेगी। अभी भी कितनी ऐसी चीजें हैं जो मैंने कभी नहीं देखी, तो कभी कभार कोई लिस्ट आ जाती है मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो कराची के ऑलमोस्ट तकरीबन सारे इदारे जानते हैं मुझे, और उन सब के अंदर मेरा प्रोडक्ट लग चुका है और आइंदा भी लगेगा इंशाल्लाह। तो अभी भी कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसमें मुझे थेरेपिस्ट की हेल्प चाहिए होती है, और मैं ऑन एयर उन सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि जो लोग हर वक्त ऑनलाइन रहते हैं मेरी सपोर्ट करने के लिए, कि यहाँ मैं उनसे कुछ पूछता नहीं हूँ और वो मुझे बता देते हैं फौरन से कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो हमारे उस्ताद सिखाया करते थे कि शहरोज काम खुद सिखाता है कि मैं कैसे हूँ। काफी काफी All you डीप बात need की is आपने साथ में। हाँ, काम खुद सिखाता है बेसिकली, या कि काम खुद सिखाता है कि मैं कैसे होऊंगा, मुझे क्या करना है। ऑल यू नीड इज अ गुड टेक्निकल नॉलेज, राइट, और थोड़ा सा कॉमन सेंस, दैट्स इट। yeah, and a willingness to do it as well ना। एग्जैक्टली, मतलब पैशन। हाँ, क्योंकि like you said कि आपने अपना career start किया था at the age of 14, यस, like 14 is very young, so I want to talk about solution, but I also want to talk about your time at the ED Foundation कि मतलब आपने उनसे क्या सीखा। मतलब obviously बहुत कुछ सीखा होगा, but still अगर थोड़ा सा आप हमें उस टाइम के बारे में बता दें। अच्छा, वो टाइम वैसे बड़ा अजीब सा टाइम था, हमें कुछ पता नहीं होता था, जो ईदी साहब कहते थे वो हम करते थे। और एट द टाइम ऑफ 17 मैं कराची कंट्रोल रूम 115 हेल्पलाइन का मैनेजर था। अल्हम्दुलिल्लाह वो कराची की जितनी भी इमरजेंसीज होती थी हम वो डील किया करते थे, और उस वक्त इमरजेंसीज बहुत ज्यादा हुआ करती थी, क्योंकि उस वक्त कराची के अंदर कोई और रेस्क्यू सिस्टम नहीं होता था, सिर्फ ईदी था। कि आप यूं समझें कि डेड बॉडी को भी पता होता था कि ईदी की एम्बुलेंस आएगी तो बॉडी उठेगी, बिकॉज और कोई एम्बुलेंस नहीं थी, राइट। हमारे गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं था, कोई और प्राइवेट इदारे नहीं थे, सो ओनली ईदी सर्विस। तो उनके साथ काम करते करते हमने सीखा कि कराची के अंदर इन बुरे हालात में आपने सर्वाइव कैसे करना, ठीक है। आपने रोड पे फुटपाथ पे बैठ के सफेद चादर ओढ़ के सोना कैसे, ठीक है। और जब आप रश में खड़े हुए हैं, ठीक है, तो वहां जब आप किसी मरीज को उठाने के लिए जाते हैं तो लोग उस मरीज से ज्यादा आपको मारना शुरू कर देते हैं क्योंकि आप 2 सेकंड लेट हुए थे। तो हमने ये भी सीखा कि जब 100 लोग आपको मारने के लिए आए तो आपने बचना कैसे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता चीजों को सीखते सिखाते ईदी साहब के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट में काम किया, फ्लड में काम किया, अर्थक्वेक में काम किया, इवन दो कि उनके साथ उनके हेलीकॉप्टर्स में भी बैठे, ठीक है, उनके साथ कश्ती में भी सफर किया। सो वो एक बड़ा वर्सटाइल एक्सपीरियंस था। अगर कह दें कि मेरी नर्चरिंग हो रही थी तो उसमें कोई गलत जवाब नहीं। बेसिकली मुझे जो नर्चर किया वो ईदी फाउंडेशन ने किया, क्योंकि वहां से मैं अपने बचपन में गया था, मेरी मूछें भी नहीं थी उस वक्त, राइट। सो आई वाज द यंगेस्ट रेस्क्यूअर ओवर दैट टाइम, कि मैं एम्बुलेंस के साथ जाता था और मैं वहां से रोडों से इमरजेंसी में जख्मी और लाशों को उठाना हमारा काम होता था, और हम विलिंगली करते थे। उसके लिए हमें क्या मिलता था, इन 2008 और 7 की अगर बात करें तो हमें क्या मिलता था, जस्ट 4000 5000, दैट्स इट। तो ये कोई पैसे नहीं होता, ठीक है। वो हम काम करते थे, बस एक जज्बा था कि ईदी साहब के साथ काम कर रहे हैं। और अगर बिग पिक्चर पे बात करें तो ईदी साहब से क्या सीखा, ईदी साहब से बड़ा विजनरी कोई नहीं, ठीक है। वो जितना बड़ा सोच सकते थे ना, उतना बड़ा मैं नहीं मानता कि आगे आने वाले वक्तों में भी कोई सोच सकता है। तो हमने जो उनसे सीखा ना, वो सोचना सीखा कि सोचते कैसे, एग्जैक्टली बिल्कुल। हमने उनसे सीखा ना, सोचते कैसे। पहले सोचना है, फिर अल्लाह तवक्कल, यकीन रखना है, और उसके बाद बस चले जाना। ईदी साहब को पता नहीं होता था कि उनके कितने बैंक अकाउंट्स हैं, उनके पास कितना पैसा है, उनको नहीं पता होता था। लेकिन वो बस अल्लाह ताला की तरफ से थे, वो चलते रहते थे और काम होता रहता था, कभी हमारे बीच में कोई रुकावट नहीं आती थी। इवन दो के बड़े बुरे हालात देखे कराची के अंदर, तो वैसे ही इतनी इमरजेंसीज होती थी। इन 2009
यूट्यूब पे वो मौजूद है। एक फ्रेंच टेलीविजन यहाँ पर आया था कराची में। उस वक्त कराची के अंदर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थी, सो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी मुझ पे, ठीक है, और वो यूट्यूब पे आज भी मौजूद है, जिसके अंदर उन्होंने दिखाया था कि कराची के मुख्तलिफ हालात में एक जगह एक डीआईजी अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारता है, ठीक है, और एक अवारी टावर का मैनेजर अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारता है, और एक रोडों पे घूमने वाला रेस्क्यूअर अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारता है। तो अच्छा। उन्होंने मेरे साथ तकरीबन 4-5 दिन गुजारे, हमने साथ में इमरजेंसीज डील की और हमने साथ में सारे काम किए। मैं इसके वीडियो के बाद इंशाल्लाह लिंक शेयर करूंगा सो पीपल कैन सी कि उस वक्त क्या था। बड़ा अजीब सा दिखता था मैं उस वक्त इन द एज ऑफ 17 एंड 18। सो लेकिन दैट वाज अ क्वाइट अमेजिंग एक्सपीरियंस। ईदी साहब के साथ काम करने से हमने सोचना सीखा, हमने अमल करना सीखा, और हमारे अंदर वो जज्बा आया जो शायद किसी और इदारे में काम करके नहीं आ सकता, क्योंकि वी डोंट केयर अबाउट इट कि यार वहां ब्लास्ट हो गया है और आप भाग रहे हो ब्लास्ट, राइट। जब लोग वहां से वापस आ रहे हैं तो आप वहां जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, और इमरजेंसी हो रही है तो आपको पता है कि आगे गोलियां चल रही हैं, लेकिन आप एम्बुलेंस लेके वहां पहुंचे। सो ये जो एक्सपीरियंस था ना, इससे कहते हैं कि दो चीजें होती हैं, या तो इंसान बहुत सहम जाता है या तो इंसान बहुत खुल जाता है। तो मेरे साथ दूसरा वाला काम हुआ है, मेरे साथ पहला वाला नहीं। हाँ, मेरे साथ दूसरा वाला हो गया कि अब वो जो एक डर और खौफ नाम की चीज होती है, दैट्स कंप्लीटली एंड। वो बिल्कुल एंड हो गई कि यार किस चीज का डर, मतलब मैं उस हकीकत को देखकर आया हूं जिसको लोग ना सुन भी नहीं सकते। इफ यू हर्ड अबाउट कि यार ब्लास्ट हो गया और इतने लोग एक्सपायर हो गए, शायद लोग सुन के शॉक में आ जाते हैं। मैं उसको देख चुका हूँ। आई नो ईदी साहब ने हमें सिखाई। फैसिलिटी का भी एक स्पेशल थैंक यू है। आज भी मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, और उनके बेटे साथ ईदी आज भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो एक बड़ी रिस्पेक्ट है कि उनके साथ बैठ के हमने सब कुछ सीखा। हमने ड्राइविंग भी सीखी, हमने स्विमिंग भी सीखी, हमने मेडिकल ट्रेंड भी हुए। उन्होंने बहुत काम सिखाया, इसमें कोई शक की बात नहीं। और अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा था कि उन्होंने मुझे इस छोटी सी एज के अंदर उस इदारे में डाल दिया जिसको कहते हैं ना, वो ब्लेंडर कहते हैं आई गेस, जो किचन में होता है, जो सब कुछ मिक्स कर देता है, राइट। सो एक ऐसे, हाँ, ऐसे ब्लेंडर में उन्होंने मुझे डाला कि वो जो तमाम चीजें थी ना, डर, खौफ, हेजिटेशन और क्या कहते हैं उसको, नर्वसनेस, ये तमाम चीजें खत्म हो गई। और फिर वहां से स्लोली करते करते फिर मैंने कुछ ब्रांड्स में काम किया, सो लोग के यार ब्रांड बनता कैसे, ठीक है। और ब्रांड के बाद फिर लकीली मुझे दोबारा एजुकेशन फील्ड की तरफ काम करने का मौका मिला। आई वर्क इन द लाहौर, मुजफ्फराबाद, मैंने वहां भी काम किया, कुछ यूएसएड के प्रोजेक्ट्स थे उस पर काम किया। और डॉक्टर अमजद साकिब साहब, वन ऑफ द फेमस नेम इन द पंजाब, उनके साथ भी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ रहा भी, पर्सनली भी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। और फिर उसके बाद कराची में मैम सबीना खत्री हैं, सो हमने उनके साथ काम किया। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये जो 4-5-6 लोग थे ना, ये तमाम विजनरी लोग, इनके साथ काम करने से ना सोचना आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और बड़ा सोचना आया। हाँ, नहीं, उन्होंने आपको सोचना सिखा दिया ना, तो उस सोच का फिर नतीजा, आई सपोज यू कुड देन से सॉल्यूशन केम इनटू बीइंग, ठीक है, एंड इट वाज बोर्न। So, like, you started Solution about 2 years ago. Yeah, 2 years उससे ago. पहले आप इसी एरिया में थोड़ा सा फ्रीलांस टाइप वर्क कर रहे थे। Yes, I did. So, okay, then what was क्या कहना चाहिए, क्या फाइनल पुश क्या था कि okay ठीक है, now I'm gonna stop freelancing and I'm gonna start my own company. अच्छा, हुआ क्या कि जब जिस इंस्टीट्यूट में मैं और मेरी मिसेस जॉब करते थे, शी वाज द प्रोग्राम मैनेजर ओवर देयर, आई वाज मैनेजर ओवर देयर, और हम सारे काम देखते थे। तो सबसे पहला तो सवाल है कि मैं स्कॉच से इतना अटैच क्यों, ठीक है। मैं स्कॉच से क्यों अटैच हुआ कि मेरी एक आदत थी, ये भी ईदी साहब से मैं सीखी थी। ईदी साहब हमें कहते थे कि शहरोज, तुम आज जो यहाँ हो ना, तो अपने आप से सवाल करो तुम यहाँ क्यों हो, देयर मस्ट बी अ रीजन। ऐसे कोई कहीं नहीं होता। तो मैं जहां भी जाता था, मैं अपने आप से ये एक सवाल तो जरूर करता था कि व्हाई आई एम हियर, भाई। तो मैं जब स्पेशल फील्ड के अंदर आया तो मैंने खुद से सवाल किया, व्हाई आर यू हियर। उसका जवाब मिलने में मुझे 1 साल लगा। वो 1 साल लगा जब उस सेंटर में काम करते हुए कुछ बच्चों के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती, और उन बच्चों के साथ दोस्ती इस तरह हुई कि वो अपना सेशन लेने से पहले मेरे पास आते थे और मुझे हक करते थे।
अच्छा। हाँ, वो भाग के आते थे और मैं उनका नाम लेता था। अगर कोई लोग मुझे सुन रहे हो जो इस चीज को विटनेस कर रहे हो तो अपनी स्क्रीन पे इस वक्त मुस्कुरा रहे होंगे कि वाकई ऐसा हुआ था कि वो बच्चे मेरे पास भाग के आते थे और मुझे हक करते थे। वो पहले मेरे साथ 5-10 मिनट गुजारते थे, आई यूज्ड टू रीइंफोर्स देम, और उसके बाद फिर वो अपने थेरेपिस्ट के पास आते। तो मैंने उन बच्चों के साथ थोड़ा सा वक्त गुजार के सबसे पहले एक पोएम लिखी थी इस स्पेशल बच्चों के ऊपर, जिसका टाइटल था मेरी अपनी एक दुनिया है तुम सबसे अच्छा हूँ। अगर मेरे पेज पे कोई चाहे तो उसको वेरी इनिशियल पोइट्रीज के अंदर वो मिलेगा। उसके बाद फिर मैंने अपना सब्जेक्ट चेंज कर दिया लिखने का। लेकिन मैंने इन बच्चों पे एक पोइट्री लिखी। वो पोइट्री बेसिकली मुझे नहीं पता मैंने कैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो बस वो आती गई और मैं लिख पाई। और जब वो लिखा ना तो उससे मुझे पेरेंट्स ने बहुत अप्रिशिएट किया कि यार एक्चुअली यू अंडरस्टैंड कि ये बच्चे आखिर में कहना क्या चाहते हैं। सो आई जस्ट ट्राइड माई सेल्फ कि यार मैं इन बच्चों का कोई एक आधा अल्फाज तो अदा कर दूं किसी की तरफ। पूरा तो मैं भी नहीं कर सकता, आई एम नोबडी टू डू इट, राइट। लेकिन कोई एक आधा अल्फाज भी अगर मेरी वजह से किसी पर अदा हो जाता है और किसी को कुछ समझ में आ जाता है तो आई गेस मेरे हिस्से का तो काम, ठीक है। अब बाकी अल्लाह की मर्जी है, मेरे हिस्से का तो एटलीस्ट मैंने काम किया। तो मेरे हिस्से का वो काम किया मैंने, और उस काम को करने के साथ साथ ये हुआ कि रिस्पॉन्स अच्छा आया, और उसे करते करते लर्निंग 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 अगेन लर्निंग, स्टिल वी आर एवरीबॉडी इज ऑन अ लर्निंग फेज, राइट। एग्जैक्टली। सो लर्निंग करते 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 सीखते सिखाते ये हुआ कि जब मैंने वो सेंटर कंप्लीट किया और उसके बाद फिर मुझे एक और सेंटर से फोन आया, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा, ही वॉज अगेन अ ग्रेट मैन, अगर मैं उनका नाम लूँ तो मिस्टर अली अल्लाह वाला, कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम। सो ही इज सच अ नाइस आदमी, ऑनेस्टली ही इज सच अ नाइस आदमी। इन्होंने फेसबुक से मुझे कहीं अप्रोच किया था, बिकॉज फेसबुक पे उन्होंने कैसे अप्रोच किया, अ मदर कॉन्टेक्टेड मी पर्सनली और उन्होंने मुझे कहा कि मेरे बच्चे का रूम बनाना है, और उस वक्त मुझे नहीं पता था रूम कैसे बनेगा और क्या बनेगा और समथिंग लाइक दैट, बहुत पुरानी बात है। तो मैंने उनसे कहा देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता कैसे बनेगा, वी बोथ ट्राई, वी बोथ कैन ट्राई, हम दोनों सोचते हैं, हम दोनों करने की कोशिश करते हैं, विल सी कि क्या बनता है। तो वो रूम मैंने जब बनाया तो लकीली वो अच्छा बन गया, और जब वो अच्छा बना तो उन्होंने एक पोस्ट बना के फेसबुक पे डाल दिया और कुछ एक दो ग्रुप्स में डाल दिया। तो वहां से किसी थेरेपिस्ट ने उठाया, वो थेरेपिस्ट का नंबर घूमते 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 केडीएसपी पे चला गया। तो लकीली फ्रीलांसिंग भी खुद शुरू हुआ, मैंने नहीं किया, ठीक है। सही तो जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने उनसे कहा देखें, आई हैव नो ब्रांड राइट नाउ, आई एम डूइंग अ जॉब, ठीक है। मैं है। स्पेयर टाइम के अंदर आपकी हेल्प कर सकता हूँ, किसी और वेंडर के थ्रू ये काम करवा सकता हूँ। व्हाट आई कैन डू इज कि आई कैन सुपरवाइज, ठीक है। और वो करते कराते उनसे बात हुई और लकीली उनका सेंसरी रूम बनाया, और उसका सेंसरी रूम बनाते बनाते आई केम टू थॉट शारोज देयर शुड बी समथिंग योर ओन, क्योंकि अब जो ये नीड है वो एक सेंटर की नहीं है, ठीक है। ये जो नीड है वो नेशन वाइड नीड है। Yeah. तुम अकेले इस तरह कब तक करते रहो, राइट। सो यू नीड टू गैदर पीपल, थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा और विजन। सो आई स्टार्ट राइटिंग, मैंने पेजेस बड़े बड़े लिखना शुरू किए, क्या होगा कैसे होगा और इनिशियल कहाँ से हो सकता है। तो फिर ये किया कि अब इसको बनाने के लिए अगर मैं कोई कारीगर हायर करता हूँ तो उसको पे कौन करेगा, तो ये सारे मसले मसाइल आते रहे। तो इनिशियली तो भाई हमने ये किया कि मेरे टेरेस के ऊपर एक छोटा सा मैंने गज़ीबो बनाया, और उस गज़ीबो के अंदर मैंने थोड़े से इक्विपमेंट रखे, और इक्विपमेंट रखने के बाद मैंने हैमॉक बनाना शुरू किए, रोप हैमॉक बनाना शुरू किए, स्कूटर बोर्ड, बैलेंस बोर्ड अपने हाथ से बनाना शुरू किए, बिकॉज आई एम अवेयर ऑफ ऑल टूल्स। तो अपने हाथ से बनाना शुरू किए, उसको OLX पे डाला, वहां से बेचना शुरू किया, और स्लोली ग्रेजुअली जब रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ सो आई केम टू थॉट कि यार अब कुछ होना चाहिए, सो लेट्स प्लान समथिंग। और इसी प्लानिंग के दौरान अल्लाह ताला ने एक और तोहफा दिया, और वो तोहफा था मेरी बेटी। माशाल्लाह। तो बस आप बिलीव करें कि अल्लाह ताला के उस तोहफे से नवाजते ही यहाँ तक का जो सफर है मुझे नहीं पता कैसे थे। ये उस रब का मैं जितना भी शुक्र अदा करूं कम है कि मुझे नहीं मालूम कि काम कैसे आता है, लोग अप्रोच कैसे करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी बैड इन सोशल मीडिया, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आपके पास लाइव आने से पहले 4 दफा मैंने बेगम को बोला है कि भाई लिंक भेजो, मैं चेक करूं कैसे आते हैं, बिकॉज मुझे नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। तो मैंने उससे कहा कि यार चलो चलने देते हैं, गो विद द फ्लो। आते रहे, वेव्स आती रही जिंदगी में, उतार चढ़ाव बहुत देखे, ऐसी बात नहीं है। शादी को 5 साल हो गए, बड़े क्रंच देखे, बहुत मुश्किल हालात भी देखे, और फिर हर दुख के बाद एक सुख है, ये तो अल्लाह ताला ने अपनी किताबों में ऐसे ही कहा हुआ। तो बस उस चीज के ऊपर एक यकीन। और मैं अपने दोस्तों को हमेशा एक बात कोट करता हूँ कि यार देखो, रिस्क के लिए परेशान मत हुआ, वो अल्लाह ताला का वादा है, ठीक है। हाँ, बाकी अयाशियां तुम्हारी जिम्मेदारी,
रिस्क जो है वो अल्लाह ताला देगा, उसके लिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत है। ठीक है, अगर तुम्हारी नीयत साफ है और तुम वाकई कुछ करना चाहते हो, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे जो इसमें क्लाइंट्स हैं वो जानते हैं कि मैं किस तरह काम करता हूँ, डोंट केयर अबाउट मनी। ठीक है कि ठीक है यार, चीज खराब हो गई, मैं दोबारा बना दूंगा, कोई मसले की बात नहीं। स्मार्ट है, अगर उस बच्चे को हेल्प नहीं मिल रही, और खासकर पेरेंट्स, अगर पेरेंट के पास कोई चीज जा रही है और उनको हेल्प नहीं मिल रही, जाहिर है इसमें इंसान को राजी करना ज्यादा मुश्किल है बनिस्बत कि आप अल्लाह को राजी कर लो। ठीक है ना, तो सबको तो आप राजी नहीं रख सकते अपने साथ, होता है कभी कभार बैड एक्सपीरियंसेस भी होता है। ठीक है, कुछ लोगों को शायद हम बुरे भी लगते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, शायद हम लोगों को बुरे भी लगते हैं, तो अब उन बुरों के लिए हम दुआ कर सकते हैं और अल्लाह ताला के माफी मांग सकते हैं कि अल्लाह ताला अगर हमारी जात से कुछ हुआ है तो हमें माफ कर। ठीक है, क्योंकि देखिए इंसान के साथ आप ना डिबेट करके कुछ हासिल नहीं कर सकते, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये एक, इसको कहते हैं वो कड़वा सच भाई, आप नहीं कर सकते टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हर किसी के अपने ओपिनियंस हैं। मेरी नजर में कुछ और सही है, आपकी नजर में कुछ और सही है, मेरी नजर में ये गलत है, आपकी नजर में गलत नहीं। सो यहाँ इन चीजों को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। सो ऑल वी कैन डू दिस इज कि यार अगर कोई गलती होती है तो अल्लाह ताला से माफी मांग ली जाए। होती है, इंसान का पुतला है, कोई शक की बात नहीं। और इतनी बड़ी फील्ड है, इतने ज्यादा लोग हैं। ठीक है, कभी इंसान के मुंह से कोई ऐसा जुमला अदा हो जाए जो किसी के सामने कोई अजारी कर दे, तो और ऑलरेडी हमारे जो स्पेशल नीड्स के पेरेंट्स होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, ऐसा ही है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बड़ी कोशिश होती है कि अपने अल्फाजों को अदा करने से पहले चुन लिया जाए, प्रो लिया जाए, लेकिन फिर भी इंसान है, क्योंकि देखें अब, क्योंकि मेरे पास नेचुरली, क्योंकि बिकॉज हम ऑन गूगल राइट नाउ, तो कोई भी कहीं से भी फोन कर सकता है। और पेरेंट्स इस वक्त ऐसी कंडीशन में है कि उनको तो डूबते हुए को तिनके का सहारा, तो अगर कोई उनसे अच्छे तरीके से बात कर देता है तो वो सब कुछ बताते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये बड़ा एक हसास मामला है, और जितने भी इस फील्ड के अंदर लोग काम कर रहे हैं वो बहुत जिम्मेदार हैं इसके अंदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं तो बचपन से गैर जिम्मेदार आदमी हूँ, इसीलिए ज्यादा परेशान होता हूँ यार। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, लोग आपसे चीजें मांगते हैं, और उसमें फिर उनके बजट स्लो होते हैं, तो कभी कभार आपको ये भी देखना पड़ता है कि यार ये चीज कैसे पहुंचेगी इनके पास। तो करते कराते ये है कि भाई कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, बाकी अल्लाह ताला की मर्जी। इससे रिलेटेड भी मैं पूछूं कि अभी हमारी सोसाइटी में ये भी चीज है ना कि ओटी इक्विपमेंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। ये एक बड़ा मतलब मुझे सुनने को मिलता है। तो व्हाट इज योर स्टांस ऑन दिस? और अच्छा देखिए, शुरू में तो भी और सॉल्यूशन की तरफ से भी, दोनों। देखिए पर्सनली अगर मैं बताऊं तो जब मैंने सुना था ना कि ये चीजें इतनी महंगी हैं, तो मैं भी शॉक था। तो मैंने कसम खाई कि मैं इसको सस्ते में बनाना शुरू करूं। अच्छा, ऑनेस्टली मैंने कोशिश की, क्योंकि मैंने जब साउथ पॉ विजिट किया, जैसे आपके IPM कराची के अंदर, तो ये साउथ पॉ से डायरेक्ट अमेरिका से सामान मंगाते, सो आई जस्ट विजिटेड द इक्विपमेंट्स एंड ऑल, तो वो बहुत महंगे थे। तो फिर मैंने कहा कि यार ये वाकई बहुत महंगे हैं, तो उसको हम कम कैसे कर सकते हैं। तो जब मैंने बनाना शुरू किया ना, तो एक बड़ी मजे की बात पता चली, यार ये वाकई बहुत महंगे हैं। ये सस्ते नहीं बन सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सस्ते नहीं बन सकते, ये वाकई बहुत महंगे हैं। क्योंकि पता क्या होता है, एक चीज को बनने में ना 4-4, 5-5 दिन लग जाते हैं पहली बार। ठीक है, और उसके बाद उस एक चीज के अंदर कई किस्म का मटेरियल इस्तेमाल। अगर मैं एक छोटी सी मिसाल दूं आपको, आप बोल्स्टर स्विंग ले, ठीक है, अब बोल्स्टर स्विंग के अंदर मेटल भी यूज होता है, बोल्स्टर स्विंग के अंदर वुड भी यूज होती है, बोल्स्टर स्विंग के अंदर फिर कुशन होता है, रेक्सिन पैडेड होती है। ठीक है, फिर बोल्स्टर के अंदर सेफ्टी हुक्स और रोप्स यूज होती हैं। ठीक है, तो ये 4-5 चीजें आ गई आपके पास। अब अगर आप इसको अकेले बनाने निकलते हैं तो ये 4-5 चीजें आपको अलग अलग जगह से मिलती है। ठीक है, तो आप अगर इसको अकेले बनाने की कोशिश करेंगे तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा। सो वी केम कि यार अब ऐसा नहीं चल सकता। तो फिर मैंने एक वर्कशॉप लिया, और उस वर्कशॉप के अंदर मैंने सब स्टेशन बनाए कि भाई यहाँ ये हम कुशन का काम करेंगे, यहाँ हम लोहे का काम करेंगे, यहाँ हम लकड़ी का काम करेंगे, छोटे छोटे स्टेशन, ज्यादा बड़े नहीं। लेट्स स्टार्ट एक्सपीरियंस, कोशिश तो करें बनाने की, लेट्स सी कि क्या होता है। हाँ, शुरू में तो ऐसा होता था कि मिसाल के तौर पर मैंने किसी चीज का कोटेशन दे दिया 7-8 लाख में, ठीक है, वो मैं बनाने बैठा तो वो मुझे ही डबल की पड़ गई। सो मैं यूं बैठा होता था, अच्छा ये क्या हो गया, क्योंकि नहीं होता, आइडिया नहीं, यू कैन नॉट इमेजिन कि आप जब इस चीज को बनाएंगे तो उसके अंदर और कौन कौन सी चीजें लग जाएंगी। दिखने में तो वो सिर्फ एक आपको पीस दिखता है ना, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके अंदर बहुत सारे लोगों की एफर्ट होती है। फिर अगर वो एक क्या कहते हैं उसको, मिलीमीटर भी अगर उसके साइज में डिफरेंस आ जाए
तो थेरेपिस्ट उसको रिजेक्ट कर देता है, राइट। तो बड़ा ही डिटेल्ड काम होता है। उसके बाद फिर आप अगर मेरी वेबसाइट विजिट करेंगी तो उसके अंदर मोर देन 70% जो पिक्चर्स हैं वो मेरी अपनी है, मतलब अच्छा गूगल पिक्चर नहीं है, गूगल पिक्चर नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारी गूगल पिक्चर उस पर से रिमूव कर दूं और मुझे उनका साथ नहीं पड़े। जैसे जैसे चीजें बन रही हैं वैसे वैसे हम उसको शूट कर रहे हैं और हम उसको वेबसाइट पे दे रहे हैं कि यार ये हमारी अपनी पिक्चर्स हैं, हम इसको बना चुके हैं, हम इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, सो नाउ वी कैन सी इट। अदरवाइज हवा में तीर मारना बहुत मुश्किल काम है, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत मुश्किल होता है कि हम क्लाइंट से कैश ले लें और फिर चीज पूरी ना हो सके। तो ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है, इसको देखना, इसको समझना। और फिर क्लाइंट भी ऐसा जो ऑलरेडी एक संगीन तरीन प्लेटफॉर्म से गुजर रहा है, राइट। तो उसके अंदर ना बड़ा क्या कहते हैं उसको, पेचीदा मामला होता है, बड़ा पेचीदा मामला होता है। मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं यार शरोज यू आर सो एक्सपेंसिव, आई नो आई एम। उसकी वजह है कि अगर मैं इससे सस्ता करूंगा तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, और अगर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी तो फिर अगेन मेरा बैठने का फायदा कोई नहीं है। अभी भी साउथ पॉ से अगर आप कंपेयर करें तो तकरीबन 50% तो कम ही है। मतलब मेरी कॉस्ट को आप डबल करें तो आप साउथ पॉ पे जाते हैं, ठीक है। और तो कोशिश की है कि मैं उसको हाफ पे लेकर आया हूँ, अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उससे नीचे लेकर आऊँ, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन विल सी, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। मेरी पूरी कोशिश है कि एटलीस्ट वो चीजें जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चों के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे आपका मोबिलिटी एड्स है, आपकी कॉर्नर चेयर्स हैं, आपके सीपी स्टैंड्स हैं, ठीक है, आपका जो वो स्टैंडिंग फ्रेम्स होते हैं, ठीक है, ये क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है और यहाँ पर हमारे पास मौजूद नहीं है इस वक्त, सिटी में भी मौजूद नहीं है, चाइना से इंपोर्ट हो रहे थे वो सब बंद है इस वक्त। तो मेरी कोशिश है कि मैं इन चीजों को मजीद सस्ता कर सकूं किसी तरीके से, ताकि लोग इन चीजों को ना घर पे इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि सीपी स्टैंड और ये वो चीजें हैं जो सिर्फ इंस्टीट्यूट नहीं, हर घर की जरूरत है। जिसके पास स्पेशल बच्चा है जो सीपी है तो उसको सीपी स्टैंड की जरूरत है, वो नॉर्मल रूटीन के काम उससे नहीं करवा सकता, लेकिन अगर वो एक स्टैंड 40-45 हजार पे चला जाता है तो वर्किंग क्लास कैसे अफोर्ड कर सकते हैं उसको। मतलब 40-45 हजार यहाँ हमारे नॉर्मल आदमी की सैलरी नहीं होती, ठीक है। वो बेचारा एमबीए करके लगा हुआ होता है मेहनत मजदूरी में, तो तब जाके उसको 25-30 हजार रुपए मिल रहे होते हैं, तो वो अपने बच्चे के लिए 40-45 हजार का स्टैंड कहाँ से लेगा, और वो किसी से मांग भी नहीं सकता भाई। तो एक बस इसको कह सकते हैं कि कोशिश है, अल्लाह ताला इसमें कामयाब करे, आप लोगों सबकी दुआओं की भी जरूरत है कि अल्लाह ताला इसमें कामयाब करे कि हम वो तमाम चीजें यहाँ बना सकें जो बाहर से आ रहे हैं, ठीक है। प्लस उसके साथ ये है कि इंस्टीट्यूट्स को भी चाहिए, एक मैसेज इंस्टीट्यूट्स के लिए भी होगा कि वो भी अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करें। एटलीस्ट आप उनसे बात करें, आप उनको मौका देते, लाजमी नहीं है शहरोज कोई भी काम कर रहा हूँ, शहरोज के अलावा भी 10 और लोग आएंगे जो काम करेंगे इसमें, शहरोज की मीरास नहीं है भाई, इसको कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो 10 और लोग काम करेंगे तो एटलीस्ट आप उनके साथ बैठे, आप उनसे बात करें, आप उनको मौका दें काम करने का, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री को हम खुद मौका नहीं देते और फिर हम शिकायत करते हैं कि मेड ऑफ पाकिस्तान जो है वो चीज अच्छी नहीं है, राइट। तो आप एटलीस्ट उनको मौका दें, उन पे ट्रस्ट करें, उनको काम करने की कोशिश करने दें, ठीक है, और उनको एटलीस्ट एक रीजनेबल अमाउंट भी पे करें। ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तानी है तो उसको आप चीज 2 रुपए में खरीद, ऐसा नहीं है, वो चोरी करके माल नहीं ला रहा, राइट, वो भी खरीद के लाता है। तो आप उसकी मुनासिब उजरत उसको दें, ठीक है, और उससे काम करवाएं, फिर आप देखेंगे काम कैसे हो। मेरे पास लेबर तब का काम करता है, कारपेंटर्स हैं, वेल्डर्स हैं, कुशन वाले हैं, मतलब डेली की ना एक सर पे हैमर होती है डेली की, तो मुझे पता है उन लोगों से कैसे काम लेना है, राइट, क्योंकि उन लोगों से काम लेना है, आगे काम डिलीवर करना है, तमाम छोटी छोटी चीजों को देखना है, सो दिस ऑल थिंग्स आर हैपनिंग, और फिर उन तमाम चीजों को मैनेज करना है। तो देखें आसान, फिर वही बात है, आसान कुछ नहीं होता, लेकिन अगर इफ यू आर विलिंग टू डू समथिंग तो आप कर जाते हैं, बिलीव करें। आपने लिखा ब्रेन बिहाइंड solution.com.pk, राइट, इसको हम करते हैं द हार्ट बिहाइंड solution.com.pk। इट्स नॉट एक्चुअली अ ब्रेन, इट्स एक्चुअली अ हार्ट, जहां से फील आया और फील आने के बाद लिटरली कनेक्ट किया, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं है पहाड़ों पे बाइक पर आने की और आपको विजिट करने की, राइट। तो इट्स इज ऑल बिकॉज के यार मैं कुछ सीखने के लिए आया, यार देखूं कि यहाँ लोग कैसे काम कर रहे हैं, राइट, और क्या कर रहे हैं, चीजें जो आप लोग अवेल कर रहे हैं वो कहाँ से आ रही हैं, मैंने तो नहीं दी, तो वो कोई तो बना रहा है, तो वो किस लेवल की बना रहा है, वो चीजें आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, और अगर अपने बिहाफ पे कर रहे हैं तो सैल्यूट है आप लोगों को कि आप वो तमाम चीजें खुद से कर रहे हैं, राइट। मैं पिंडी आया हुआ था स्पेशल ओलंपिक्स पे प्ले रूम बनाने के लिए,
तो प्ले रूम बहुत अच्छा बना अल्हम्दुलिल्लाह, और वहां से फीडबैक भी यही मिला कि ये काम यहाँ कोई नहीं कर रहा। तो मेरी अभी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, अभी तो जाहिर हर बंदी की कैपेसिटी होती है, तो अभी मैं फिलहाल उतना ही काम ले रहा हूँ जितना मैं कर सकता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वरना मैंने भी मुंह के बल करना, सीधी सी बात है। और मैं नहीं चाहता कि इस सफर के अंदर एक हल्का सा झर्क भी आए, तो इसीलिए मैं एक लिमिटेड कैपेसिटी के साथ, या लिमिटेड, जितना कर या सकते हैं उतना करने की कोशिश करते हैं, बाकी अल्लाह ताला हाँ नहीं देता वही रहेगा, बात है बंदा कि करता रहेगा। आपने स्टार्ट किया और अभी काफी लोग इस चीज को कर नहीं रहे, तो एक ये भी है हम्म कि आपके पास अपॉर्चुनिटी भी एक्सपैंड करने की, राइट, बट हम्म लाइक यू सेड कि यू गोना टेक इट लाइक रीजनेबली, कि इतना हम्म ज्यादा भी लोड ना ले लिया जाए कि संभाला ना जाए। So एग्जैक्टली what are you बिल्कुल। going to say to people who are thinking of coming into this area or starting up something like this? लेट्स डू इट टुगेदर, दैट्स इट, एक जुमला बहुत है। I'm here to help you guys in any case, honestly. Any case, if you want to consult anything, if you want to know anything, मेरा वर्कशॉप ओपन है आप लोगों के लिए, you can visit, देखिए मैं कैसे काम कर रहा हूँ। यार देखिए बात सीधी सी ये है कि मेरा एक मानना है, जिस प्रोफेशन में जितने ज्यादा लोग काम करेंगे उतना बिजनेस आएगा, कम नहीं होगा, राइट। तो मेरे अलावा अगर कंपनीज आके काम करेंगे ना, तो ये बिजनेस मल्टीप्लाई होगा, कम नहीं होगा। मेरे हिस्से का जो रिस्क है वो अल्लाह ताला मुझ तक पहुंचाएगा, राइट। तो और अगर उससे फायदा ये होगा कि मेरे अंदर भी वो लगन पैदा होगी कि भाई अब तो कॉम्पिटिटर भी आ गया ना, अब तो काम को और अच्छा करना है, ठीक है। तो वो चीज भी क्रिएट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकेला जंगल में तो शेर भाग रहा होता है ना, वो एक पे थक जाता है, Yeah. जब तक उसको ये पता ना हो कि यार सामने से हमला होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ऐसा होना चाहिए, लोगों को आना चाहिए, काम करना चाहिए, जो चीजें मैं बना रहा हूँ वो ना बनाए, जो मैं ना बना रहा हूँ वो बनाना शुरू कर दें, सो वी कैन कोलैबोरेट, हम साथ में काम कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं, हम साथ में काम कर सकते हैं, इदारे बन रहे हैं, ठीक है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 years आई वर्क विद मोर देन 19 ब्रांड्स, मोर देन 19 ब्रांड्स, और वो माने जाने ब्रांड्स हैं। इफ यू कैन गो थ्रू माय वेबसाइट तो आपको एक बड़ी क्लाइंट लिस्ट मिलेगी कि उनके कुछ छोटे मोटे काम नहीं, उनके पूरे पूरे रूम मैंने इक्विप्ड किए, ठीक है। तो उनके थेरेपिस्ट के साथ बैठ के, अगेन थैंक यू सो मच थेरेपिस्ट जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, कि आप लोगों ने इतना साथ दिया और अपना कीमती वक्त दिया, जिसपे हम लोगों ने लर्न किया चीजों को और बनाने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बनी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बनी, क्योंकि रिवॉर्ड का जो वादा है वो अल्लाह ताला ने किया। वो हमारे मदरसे के एक उस्ताद थे, वो मुझे सिखाया करते थे, कह रहे शाहरूस कोई भी काम करो ना, उसमें सिर्फ नीयत कर लो कि अल्लाह ताला ये काम मैं तेरी रजा के लिए कर रहा हूं, फिर उसमें देखो पैसे तो मिलने ही है ना, थोड़ा वो सवाब भी मिल जाता है, ठीक है, पैसे तो मिलने ही है ना, दोनों मिल जाए, दोनों मिल ही जाता है ना। वो हमारे मौलवी साहब ने एक मिसाल दिया करते थे, बोला देखो बेटा ये रोशनदान, ठीक है, अब इस रोशनदान से वैसे तो हवा आ रही है, ठीक है, अगर तुम इस पे नियत कर लो कि अल्लाह ताला ये रोशनदान मैंने इसलिए बनाया है कि इसमें से अजान की आवाज आएगी और मैं नमाज पढ़ूंगा, राइट। सो क्या हुआ, उस नियत के गेम से आपने कुछ ना कुछ अर्न जरूर, काम में और आप सब कर रहे होते हैं, इट्स डिपेंड कि हम उसके बैकएंड पे सोच कर। उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि बस रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने किया है ना, तो सुबह उठते ही उसको याद करो और घर से निकलो, आपको नहीं पता चलेगा कि चीजें कैसे होती हैं, कहाँ से होती हैं, और बिलीव में ऐसा ही है सब कुछ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सब कुछ ऐसा है। अच्छा, I'm gonna go off, sort of off track for a minute. I can see कि किस तरह you like put a lot of importance in for your teachers, a lot of value and respect. And आजकल things have changed, online classes, and you see a lot of things, a lot of Yes. disturbances between teachers and students. So, would you like to comment on that? What has changed? Why do students not feel the same amount of respect for teachers or something? Have the teachers changed? Have their devotion changed? What do you feel? इसमें एक सबसे बड़ा जो चेंज आया ना, कि लर्निंग का फिल्टर खत्म हो गया। हमारी लर्निंग वो होती थी जो हमें सिखाया जाता, हम खुद से रिसर्च नहीं कर सकते, राइट। हमारे बचपन में हमारे पास क्लिक ऑप्शन नहीं था, ठीक है, हमारे बचपन में हमारे पास कोई ऐसी चीजें नहीं थी, तो हमें जो चीजें सिखाई जाती थी ना,
हम उन पे अपनी दुनिया को रोक देते थे कि यार दैट्स एंड, अब इसके बाद तो अगला चैप्टर हम कल पढ़ेंगे, हम आज उसको पढ़ ही नहीं सकते, राइट? अभी का जो आलम है ना, वो हर बच्चा घर में बैठ के अपनी किताब खुद पढ़ चुका है, ठीक है? तो वो जो उस्ताद का जो रोल था, उस्ताद का रोल थोड़ा थोड़ा कम होता गया। और फिर एक और बड़ा बिगाड़ क्या आया, बिगाड़ ये आया कि उस्तादों का जो लेवल था वो भी उस्तादों वाला लेवल रहा नहीं। तो हमारे जो उस्ताद होते थे भाई, वो डंडे की नोक पे पढ़ाते, ठीक है ना? हमने बहुत मारे खाई हैं, बहुत स्टीकें खाई हैं, है ना? तो हमारे जो उस्ताद होते थे वो डंडे की नोक पे पढ़ाते थे। अब तो पेरेंट्स, खैर बच्चों को कुछ भी नहीं कर सकते आप, पेरेंट्स की तो बात अलग है, बच्चों को आप कुछ भी नहीं कर सकते, राइट? So they are allowed to humiliate the teacher, they are allowed to disrespect the teacher, वो outings करते हैं, वो सारी चीजें करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत अच्छा बचपन गुजारा, हम भी करते थे, लेकिन उन सब चीजों की ना एक लिमिट होती है। हमें नई चीज सीखने के लिए ना कुछ वक्त लगता था। आज के तालिबे इल्म को ना नई चीज सीखने के लिए वक्त नहीं लगता, बात सिर्फ इतनी सी है, क्योंकि उसके पास उस हर चीज का एक्सेस है जो नहीं होना चाहिए। मैं कल अपनी मिसेज से बैठ के बात कर रहा था कि मैंने यार यूट्यूब को ना अब एक कस्टमाइज फिल्टर देना चाहिए। क्या हम जब अपने बच्चों के हाथ में फोन देना तो हम कस्टमाइज फीचर्ड करें, कस्टमाइज उसको फिल्टर करके अपने बच्चों के हाथ में दें ताकि वो यहाँ वहां ना आए। ऑनेस्टली मैं उससे बात कर रहा था, मतलब यार ऐसा कुछ होना चाहिए कि कस्टमाइज फिल्टर होना चाहिए हमारे पास कि हमारे बच्चे की ये लिमिट है, इससे आगे ये गूगल नहीं कर सकता। वो हम सेट करेंगे हमारे बच्चे की कैपेबिलिटी देखते हुए, वो गूगल सेट नहीं कर सकता, क्योंकि एवरी चाइल्ड इज अ डिफरेंट माइंडसेट, राइट? तो वो हमें पता है कि हमारे बच्चे का माइंडसेट क्या है, तो हमारे पास वो कस्टमाइज फिल्टर होना चाहिए कि हम अपने बच्चे को लिमिट कर सकें कि बेटा अगर तुमने ये देखना तो तुमने यही देखना, ठीक है? क्योंकि आप देखें, अगर कितनी भी कसमें खा लें, आप अपने बच्चे को स्मार्टफोन से दूर नहीं कर सकते, ये बात फैक्ट है, चाहे आप कितनी भी कसमें खा लें, क्योंकि आप खुद दूर नहीं हो सकता। जो नीड आपकी नीड है, वाईफाई बंद होता है तो मुझे घबराहट शुरू हो जाती है, वाईफाई बंद हो गया, ठीक है? तो आप अपने बच्चे को दूर नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो जब बच्चे को दूर नहीं कर सकते और चीज भी उसके हाथ में देनी है, तो फिर उसके अंदर कोई कस्टमाइजेशन चाहिए, ठीक है? और प्लस जो पेरेंट्स हैं, जो अब तो खैर दर्सगाहें सारी बंद है, तो कोई दर्सगाह तो जा ही नहीं रहा, तो सबने वो छोटी मिनिमाइज स्प्लिट विंडो करके ऊपर टीचर को रखा हुआ है, नीचे यूट्यूब चल रहा है, ठीक है? तो उसके अंदर यू कैन नॉट से कि यार ऐसा भी होगा और वैसा भी हो सकता है, ठीक है ना? तो हम उसको लिमिट नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये एक सबसे बड़ा अलमिया है। दूसरी बात, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक दौर ऐसा भी आएगा जिसमें ये तमाम चीजें होनी है, ये तो पहले से बता दिया गया था कि वो दौर आएगा जिसमें बड़े की इज्जत, छोटे की शफकत, नफ्सा नफ्सी का दौर, ह्यूमिलिएशन, अब्यूज, रेप, ये तमाम चीजें बढ़ेंगी, तो पहले ही बता दिया गया था। पीपल आर अवेयर विद दिस, तो उनको पता है यार ये होना है, इसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट मजीद बढ़ने से तो कुछ कर सकते हैं। कि मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं कम से कम अपने इखलाकी दायरे में रहकर अपने बच्चे को तो ट्रेन कर लूं, बाकी की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, ठीक है? मेरी एक कैपेसिटी है, और ना मैं घंटों किसी पेरेंट के पास बैठ के ये बात समझा सकता हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ा फिलोसोफर हूँ कि मैं ये बातें करता रहूं, ठीक है? सो एवरीबडी हैज एन ओन गिरेबान, उसके अंदर जाके, ठीक है? और देखें कि आप अपने ओन पे क्या डू क्रिएटिविटी विद योर किड्स, अपना टाइम निकालें थोड़ा सा। I used to play with my little doll. She's 1.7 right now. लेकिन हम फुटबॉल खेलते हैं, हम हॉकी खेलते हैं, हम मट्टी में बैठते हैं, मैं उसको बाहर अपनी साइड पे भी लेके जाता हूँ कि लेट्स गो, कुछ नहीं होता, ठीक है? कोविड एक अपनी जगह पर है, ठीक है? आई एम द कैरियर, अगर मुझे कुछ होना है तो मेरा बच्चा बच नहीं सकता मुझसे, टू बी वेरी फ्रैंक, राइट? तो मैं उसको भी अपनी साइड पे लेके जाता हूँ, वो मेरे साथ बैठी भी होती है, उसको थोड़ा सा वो एनवायरनमेंट भी देना चाहिए, ठीक है? तो पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यार हमारा रोल बहुत जरूरी है, बाकी सारी बातें बात। अगर मैं अपना फोन नीचे नहीं रख सकता थोड़ी देर के लिए भी, तो मैं फिर अपने बच्चे से ये तवक्कुआत ना रखूं कि वो अपना फोन नीचे रखे, राइट? मैं उससे वो कैसे तमाम चीजें एक्सपेक्ट कर सकता हूँ जो मैं नहीं कर रहा। मैम सबीना खत्री यूज्ड टू टीच अस, मैंने उनके साथ ट्रॉमा सेंसिटिव स्कूल में काम किया, तो वहां पर ड्रग एडिक्ट बच्चे थे और लियारी के बच्चे थे सारे, ठीक है? आई एम आल्सो बिलोंग टू लियारी, मैं भी वहीं बड़ा हुआ, तो वहीं के सारे बच्चे थे। तो हमारा एक पैशन था कि उन बच्चों को हमने दोबारा जिंदा करना है। जो स्कूल अडॉप्ट किया था वो एक टॉर्चर सेल था, ठीक है? तो उस टॉर्चर सेल के अंदर दोबारा उस स्टडी को रिवाइव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो
थैंक्स टू मैम सबीना जिन्होंने ये काम स्टार्ट किया और हमें मौका दिया काम करने का। तो हमने वहाँ ये बहुत सारी चीजें सीखी, वी केम टू नो कि यार इन बच्चों के साथ क्या करना चाहिए। तो हम उन बच्चों के साथ बीच गए, हमने उनके साथ योगा किया, हमने उनके साथ बीच पे फुटबॉल खेला, सुबह सुबह घर पे सबको कहते थे आलू बना के लाओ, तुम चने बना के लाओ, दैट वाज अ फन राइट। हम उनके साथ बीच जाया करते थे और वहां पर दस्तर लगा के सुबह सुबह नाश्ता किया करते थे, एक्सरसाइज किया करते थे। सो दैट वाज अ फन जो उन बच्चों को दोबारा जिंदा करता, दैट्स अ नर्चरिंग एक्चुअली, ठीक है। तो वो तमाम चीजें होना बहुत जरूरी है। प्लस इसके साथ साथ स्पेशल पेरेंट्स के लिए तो खास एक जुमला है, मैंने एक चीज सीखी है, आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग, पीपल करेक्ट कर लेंगे मुझे कमेंट में अगर मैं गलत हुआ तो बिहेवियर शेपिंग राइट, बिहेवियर शेपिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के अंदर। हमने क्या सीखा, ये काम हम पहले से करते थे, मुझे नहीं पता था बिहेवियर शेपिंग क्या होता है, लेकिन ये काम हम पहले से करते थे। जो बच्चा बहुत ज्यादा तेज भागता था हम उसको फुटबॉल में डाल देते थे, जो बच्चा बहुत ज्यादा हाथ चलाता था हम उसको स्विमिंग में डाल देते थे, ये हम पहले से करते आते थे। लेकिन जब व्हेन आई केम टू नो कि यार एबीए अप्रोच भी बिहेवियर शेपिंग एक्चुअली यही है, तो मुझे उसका ना नाम मिल गया। मैं मंसूर चौधरी से कह रहा था कि सर ये सारे काम तो मैं पहले से कर रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं अब तुम्हें पता चला तुम क्या कर रहे हो, मतलब जी सर, बोला आप करते रहो बस। तो बिहेवियर शेप करना बहुत जरूरी है। अगर आपका बच्चा फ्लैप कर रहा है, आपका बच्चा हिट कर रहा है किसी चीज को, तो आपने उसको कुछ ऑल्टरनेट दे, ठीक है। अगर मेरा बेबी आ रहा है मुझे टक्कर मार रहा है तो मैं क्यों ना फुटबॉल लेकर उसके सर पे मार दूं, राइट। मैं क्यों ना फुटबॉल लेके उसके सर पे मार दूं बजाय इसके कि मैं उसको टक्कर ही मारने दूं। So that's called a behavior shaping and in a layman understand, right? मैं कोई किताबी बात नहीं कर सकता because I'm not a degree holder or certified as जैसा थेरेपिस्ट होता है। So लेकिन एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है जो मैं इतने इदारे घूम के चीज़ों को लर्न कर रहा हूँ। So at least I can share my experience कि यार ऐसा भी होता है। आप बच्चों को देखें और उनके बिहेवियर्स को देखें कि उस बिहेवियर का आप क्या कर सकते हैं। That's shaping. टाइम लगता है, हर चीज़ को स्लोली ग्रेजुअली होता है, टाइम लगता है, ठीक है। और करना शुरू करें, अल्लाह ताला वो है नुक्ते पे नवाजने वाला ज़ात है, क्या पता नवाज दे, क्या पता नवाज दे, आप कोशिश तो करें, ऐसे ही है ना। और जहाँ तक रही हमारे उस्तादों की बात, तो उस्ताद जितना कम उम्र होता रहेगा उतने मसले पड़ते रहेंगे। ऐसी बात है ना, ये एक फैक्ट है, देखें ये एक फैक्ट है, ठीक है, कि अगर मुझे पढ़ाने के लिए मेरे ही जितना कोई आता है तो मैं उसे इतना आसानी से एक्सेप्ट, ये एक फैक्ट है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट हो सकती है, मेरा बात करने का अल्फाज शायद डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन फैक्ट को आप डिनाई नहीं कर सकते। उस्ताद की जितनी उम्र कम होती रहेगी उतना ये जो मसला आजकल चल रहा है ये बढ़ता है। हमारे उस्ताद होते थे जिनसे हम नजरें नहीं मिला सकते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम अगर उनकी आंखों में देख लेना तो वो चमाड़ मारता, तूने देखा कैसे। तो हम तो उन उस्तादों के आगे बड़े हुए हैं, तो हम तो मजाल नहीं कर सकते किसी उस्ताद की बेइज्जती करना या किसी उस्ताद की रिस्पेक्ट न करना। देखिए अच्छे बुरे उस्ताद भी होते हैं, इंसान है ना, वो भी तो इंसान है ना, लाजमी नहीं है सारे उस्ताद ही मोहतरम हो और सारे उस्ताद ही मुअज़्ज़िज़ हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। लेकिन अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो जो भी हैं वो उनका मसला और आप जो हैं वो आपका किरदार है। मैं हमेशा बात करता था अपने दोस्तों से कि यार तालीम तो हर बंदा ले लेता है, आओ तरबियत पे बात करें। तालीम तो कहीं से भी ले लेते हैं ना, तालीम तो क्या है, एक सर्टिफिकेट है, दैट्स इट, आई डोंट नीड इट। आओ तरबियत पे बात करें, आपके बच्चे की तरबियत किस तरह हो रही है, आपका बच्चा जो बेसिक चीजें हैं वो आपसे किस तरह सीख रहा है, और आपका बच्चा जब उम्र बलूगत पे आता है तो उसको कौन ट्रेन करता है। Which is something like definitely worth pondering upon, seriously, especially जब आपने teachers की age की बात की है ना, this is something that one should like really introspect करना चाहिए वाकई। So coming back to solution, yes, हाँ, yes, thank you. आप अच्छा you create materials and आप लोग रूम डिजाइन करते हैं, तो इक्विप भी करते हैं, मतलब सारा you पूरा फिट करके you like give the finished product। हमारा स्लोगन है कॉन्सेप्ट टू क्रिएशन। ऑल यू नीड है, मुझे खाली रूम की पिक्चर भेज दें आप, ठीक है, और मुझे आप उसका ब्लूप्रिंट भेज दें कि इसकी मेजरमेंट क्या है, ठीक है, और थोड़े से अपने आइडियाज भेज दें व्हाट यू वांट टू डू विद दिस, ठीक है, बाकी सब मुझ पे छोड़ दें। ओके, बाकी सब मुझ पे छोड़ दें, मैं उसको डिजाइन करूंगा, मैं उसकी 3D बनाऊंगा, I'm a 3D डिजाइनर, मैं उसकी 3D बनाऊंगा और 3D बना के आपको भेजूंगा, फिर हम उस 3D पे खेलेंगे, ये हटा दो, ये लगा दो, ये हटा दो, ये लगा दो।
और फिर उसके बाद भी केम टू नो कि ठीक है अब इतना टाइम लगेगा और हम उसको सेम 3D बना के देंगे। और यू कैन गो थ्रू माय पेज, तो आपको जितनी भी पिक्चर्स मिलेंगी अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे अपने हाथ से बनी हुई चीजें हैं, उसको हमने खुद सेट किया है और आज वो बहुत अच्छे से यूज हो रही है। एंड प्लस आई एम आल्सो गिविंग द सेल सर्विस टू पीपल। कम से कम साल 1.5 साल तो मैं उनके साथ लगा रहता हूँ कि यार कोई चीज टूट रही है, खराब हो रही है, शायद उन्होंने लाखों रुपए लगा दिए, तो उनका हक बनता है कि अगर कोई 2-4 चीजें टूट जाए तो मैं उसको रिप्लेस कर दूँ, तो मैं उसको रिप्लेस करके देता हूँ। और वो तमाम चीजें अगर कोई फौरन से खराब हो रही है तो मैं उसको ठीक भी करके देता हूँ। आई डू व्हाटएवर आई कैन। जहां तक सकत है इंसान को वहां तक तो जाना चाहिए, बाकी फिर मंजिल तो बहुत दूर है और रास्ते भी अभी पोशीदा हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। और I can see the point coming out. अच्छा, अब मुझे ये भी बताइएगा कि like you mentioned your wife and your daughter. Let's talk about your wife. How has she supported you in this journey, and what's her role at Solution? किस तरह से, मतलब क्या डायनामिक है? बट डायनामिक ये है कि अगर वो नहीं होती तो शायद सोल्यूशन नहीं होता, इससे बड़ी कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि शी सपोर्टेड मी इन द एवरी स्टेप, शी सपोर्टेड मी इन द एवरीथिंग। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड विद एन अमेजिंग वाइफ और अल्लाह ताला ने उसके बाद एक अमेजिंग डॉटर भी दे दी। सो आई एम लिविंग इन माय होम विद 2 फीमेल। सो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हुआ कि हमने जब शुरू किया था तो जाहिर हम दोनों जॉब करते थे, लिविंग अ न्यूक्लियर लाइफ, राइट, तो हमें सारी चीजों को सपोर्ट भी करना होता था, तो वो हमेशा कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ चली। और वो भी सुन के मुस्कुरा रही होगी कहीं पे कि मैं वर्कशॉप में हूँ, वो घर पे है। सो शी इज स्माइलिंग। सो यस, उसका बहुत बड़ा हाथ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कितने बुरे दिन आए, कितना क्रंच आया, कैसे कैसे हमने वक्त गुजारा, और सच बताऊं तो यार भूख देखिए, सच बताऊं भूख देखिए, तो जो भूख देखता है ना वो कर जाता है, जो नहीं देखता ना उसके लिए मुश्किल हो। लेकिन देखने में लाइक यू हैड अ गुड पार्टनर ना, या अल्हम्दुलिल्लाह हमने साथ काम किया, हमने सलीम खत्री के पास साथ काम किया, इसके अलावा 2-4 प्रोजेक्ट साथ किए, और उसके अलावा हमने फिर स्पेशल फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा काम किया। अभी भी मेरी सारी करस्पॉन्डेंस वेबसाइट की, फेसबुक की वही देखती है। मैं सारा दिन बाइक चलाते हुए जवाब तो नहीं दे सकता, सो शी इज बीन ऑल द टाइम ऑनलाइन, वो जवाब दे रही होती है और अपने भी काम कर रही होती है। शी लव्स क्लोथिंग इन द गारमेंट बिजनेस, तो वो अपना भी चला रही है माशाल्लाह, और उसके साथ साथ वो मेरी भी रिप्लाईज कर रही होती हैं। और वो तमाम चीजें हैं कि देखें, वही वाली बात है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना 2 पहिए होते हैं, उन दोनों ने सिंक्रनाइज होकर चलना। अकेले एक पहिए पे गाड़ी जो है ना वो लिमिटेड टाइम के लिए चलती है, उसके बाद वो नीचे बैंक, ठीक है ना। यू कैन नॉट गो कराची से लाहौर ऑन 1 व्हील, राइट, आपको 2 व्हील पे आना बहुत जरूरी है। सो लाइक दिस के वो जो 2 व्हील का सहारा है बहुत जरूरी है। और ऑफ कोर्स यार सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। और सबसे बड़ा जो मसला है हमारे यहाँ लोगों का, जो खासकर मर्द स्ट्रेसफुल है, वो यही मसला है कि यार उसको बैक से सपोर्ट नहीं मिलता। नॉट सपोर्ट इन द टर्म्स ऑफ एनीथिंग, बट एटलीस्ट मोरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, ये बहुत जरूरी होता है, बिकॉज मैन हैज आल्सो एन इमोशंस, राइट, तो उसको वो इमोशनल सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि उसने सुन्नत नबी को पूरा करने का मौका बहुत जल्दी दे दिया, राइट। I'm married when I was 23, तो उसने वो, हाँ, तो उसने वो मौका बड़ा जल्दी दे दिया। और उस जल्दी के मौके ने जो गिर के और उठने वाला जो दौर होता है ना, जो एक्चुअली में जिसे कहते हैं कि बिगड़ने का दौर होता है, उसने उसमें संभाल। so there is something from the divine connectivity कि वो सारे मामलात कैसे हुए, क्या हुआ, और वो चीजें बस होती चली गई। कुछ चीजें आपके इख्तियार में नहीं होती, ठीक है, वो हो रही होती हैं, आपको सिर्फ उस वक्त उस फैसले को लेना होता है और फिर आपने देखना होता है कि यार आगे क्या होगा, लेट्स सी। मैं अपने दोस्तों को बताता हूं कि फैसला वो होता है जो आपने 2 सेकंड में ले लिया, जिसके लिए आपने सोच लिया ना वो कॉम्प्रोमाइज होता है, वो फैसला नहीं होता। ये मेरी थॉट है, लोगों की अलग होगी, लेकिन एक्चुअली में डिसीजन वो है जो आपने उसी वक्त की। अगर आप उसके प्रोज एंड कॉन्स निकाल रहे हैं, आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख रहे हैं, बड़े बड़े ट्रेनर कहते हैं कॉलम बनाएं, एक तरफ पॉजिटिव लिखें, एक तरफ नेगेटिव लिखें, भाई सब बेकार, ठीक है। हाँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, उसकी वजह ये है कि देखिए वो फिर ना आप ओपिनियन पे ओपिनियन लेते चले जाते हैं, डिसीजन नहीं होता। तो somebody suddenly came और वो आप पे अपना डिसीजन इम्पोज कर जाता है,
राइट, और फिर वो आप फैसला कर जाए, दैट्स अ गेम। वो डिसीजन नहीं होता। डिसीजन वो है कि यार मुझे ये कलम चाहिए और अभी चाहिए, दैट्स इट। ये अगर कल मुझे मिलेगा तो मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैं काम कर चुका हूँ। Yeah. हाँ, अब अगर मैं रोकूं कि यार ये पेन चाहिए मुझे, ये कल आएगा, और मैं आज का काम रोक देता हूँ, तो ये फैसला नहीं हुआ, ये तो कॉम्प्रोमाइज हो गया ना, कि मैंने अपना आज का काम कॉम्प्रोमाइज कर दिया इस कलम की खातिर। तो कभी कभार जिंदगी में ना ऐसी चीजें आती हैं कि डू एंड डाई वाली सिचुएशन मेरी जिंदगी में ज्यादा आती है, लोगों की जिंदगी में कम आती होंगी, मेरी जिंदगी में ज्यादा आती है। डू एंड डाई सिचुएशन बहुत दफा आती है, ठीक है ना। तो भाई करना है, हमने जब स्टार्ट लिया था, और हमारे माशरे का भी एक बहुत अच्छा सा निज़ाम है, उसका मैं बहुत अच्छा निज़ाम कहूंगा, कि आपके जो करीब के लोग होते हैं ना, करीब के लोग, वो बहुत देर बाद आपसे मिलते हैं। ये बहुत अच्छा निज़ाम है, आप समझ रही है बात। ये करीब के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत देर बाद मिलते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। मैं कहता हूँ किसी का ना, मैंने उससे कहा था, मुझे कहते हैं यार तुम जो है ना वो मशवरा किया, मशवरे के ऊपर हमारे उस्ताद क्या करते थे कि मशवरा आप उससे करें जिसको आप मशवरे के लायक समझें, राइट। कि अगर आपके पेट में दर्द है तो आप पान वाले से मशवरा लें कि यहाँ डॉक्टर कौन सा अच्छा होता है, आप डॉक्टर से जाके मशवरा, ठीक है। इफ यू आर कंसर्न विद योर स्पेशल नीड, तो आप स्पेशल नीड के बंदे से जाके कंसल्ट करें। तो यही मसला आता है कि आप, एक तो आप काम ऐसा कर रहे हैं जिसको कोई नहीं जानता, ठीक है, किसी की समझ में वैसे ही नहीं आ रहा, आपकी अपनी समझ में नहीं आ रहा, आप बस किए जा रहे हो, ठीक है। तो उस काम के अंदर आप मशवरा क्या करेंगे, जस्ट टेल मी। नहीं कर सकते, राइट। तो उसके अंदर ना फैसला करके उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी रहना पड़ता है। इट विल बी गुड और इट विल बी नॉट, बी रेडी, But you're ready. Yeah. बी प्रिपेयर, दैट्स अ गेम ना। आप बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है, मौत भी तो आनी है ना, कल आ जाए, क्या कह सकते हैं, सारे प्लान्स वहीं के वहीं रहेगा, नोबडी नोज, राइट। नोबडी नोज कि कब क्या होने वाला है। अभी इस वक्त तो जो हालात चल रहे हैं, जो डिप्रेशन और एंजाइटी का माहौल चल रहा है, अल्लाह इन दोनों अल्फाजों से दूर रखे। तो भाई ये जो चीजें हो रही हैं हमने कभी नहीं देखी थी, राइट। 23 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में लोग सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है, लोग अपने जस्ते खाकी में जा रहे हैं, ठीक है, आलम बरज़ख तक पहुंच गए। कैसे पहुंच रहा है, आपको तो एक मिनट का भी नहीं पता कि अगले मिनट में क्या होने वाला है। तो बस गो विद द फ्लो, दैट्स इट। जिस चीज का उसने वादा किया है वो देगा, यू नेवर नो। रोजाना उसके आगे सजदा करें, माफिया मांगते रहे, तो डेली बेसिस पे न जाने कितनी गलतियां कर जाते हैं, तो उससे माफी मांगते रहें और इस निजाम को उसी तरह चलने दें। सब्र का प्याला हाथ में रखें, पीते रहें, जीते रहें, पीते रहें, जीते रहें, और क्या। अच्छा, मुझे जिंदगी बताएं में कि what are your hopes, मतलब where do you see your company in the coming few years, and like what do you hope to achieve in a nutshell? इन अ नटशेल, लेट मी बी अ एक्सपोर्टर फर्स्ट, उसके बाद बात करें। I wish to export it. I wish to export it. कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह I'm making the products quality which can meet export limits में meet कर सकता हूँ। So I'm trying my level best कि किसी तरीके से अल्लाह ताला हाथ पकड़े और किसी तरीके से मैं उस लेवल पे आऊँ कि हम इन चीज़ों को बाहर देना शुरू करें, ठीक है, जिससे हमारे मुल्क को फायदा हो और एक ऐसी इंडस्ट्री निकले जो अब तक नहीं थी। छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन कोशिश में ही सारी चीजें, मेरे लेकिन ये जैसे लोग विजन ही हैं। सेट हो गया ना, विजन हाँ, like you learned from your teachers were visionaries, and you learned to think, and now अब आपने अपना विजन भी बना लिया है, तो इंशाल्लाह like let's see where it goes. हाँ, विजन तो यही है, अपनी बच्ची को वॉरियर बनाना है और बस अच्छे से काम करते रहना है यार। अल्लाह ताला सादी जिंदगी में रखे इंशाल्लाह और अल्लाह ताला आजिज़ी में रखे, बस यही बहुत है कि अल्लाह ताला आजिज़ी में रखे। और मुझसे पहले भी बहुत सारे लोग आए जो चले गए, मेरे बाद भी बहुत लोग आएंगे जो चले जाएंगे। बस एक छोटी सी ख्वाहिश है कि आज जो मौजूद हूँ, तो मुल्क के लिए या इदारों के लिए कुछ ऐसा काम कर जाऊँ कि मेरे जाने के बाद, आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद, ठीक है, कोई अगर किसी इदारे में दोबारा जाता है उसको रिवैम्प करने के लिए, तो किसी दीवार पे तो मेरा नाम लिखा हो कि इसको शहरोज ने बनाया। That's it। बाकी उसके बाद की खैर है यार, वो तो फिर वो दो गज जमीन के अंदर क्या मिलना है, nobody knows, right? yeah, लेकिन एटलीस्ट यहाँ एक पर आपके legacy, जाने you के want बाद, to leave a हाँ, legacy behind. एक दीवार पे, किसी एक दीवार पे मेरी प्लेट तो लगी हुई हो कि यार ये शहरोज ने बनाई थी। सो आई गेस मैंने अपने हिस्से का काम किया। इंशाल्लाह।
आपको नहीं पता आप इस दुनिया में क्यों आए और आपने क्या करना है. So let's hope for the good and try for the best. Exactly. ठीक है जी. So any final words for today, Sheru? बस अल्लाह ताला सबको खुश रखे, इस पैंडेमिक को जल्दी से जल्दी खत्म करे, कारोबार को रिवाइव करें, और जो लोग इस पैंडेमिक की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं, बेरोजगार हुए हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए और उनको आगे काम करने की तौफीक अता फरमाए. और इसके अलावा जितने भी लोगों ने मुझे सुना, थैंक यू सो मच. और अगर कोई मेरी बात बुरी लगी सो आई अपोलोजाइज फॉर दिस, लेकिन अपनी थॉट इजहार करना सबको हक है और मैंने वही किया. और बाकी ये कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे और आपको बहुत ज्यादा खुश रखे, तरक्की दे. थैंक यू सो मच. आपने सबसे पहला मौका दिया मुझे बात करने के लिए, so उसके लिए एक स्पेशल थैंक यू सो मच. थैंक यू. No, thank you so much for joining us. It was amazing talking to you, and the best part was it wasn't like stuck to one thing. Now it was like diversified, and I hope our viewers enjoyed that. And to all the viewers, thank you so much for joining us. The video, if you have seen it all, thank you. And if you haven't, you can see it will remain on our Facebook page, and we'll later upload it on our YouTube page as well. And yeah, that's it for today, I guess. Thank you. Thank you. Thank you.